Good morning, everyone. Students, as you know, chapter number 13, that's ledger. Ledger is in the continuation, and I have explained everything about the ledger. Means how we have done how to pass the journal entry, how to post the journal entries in the ledger, posting in the ledger, okay, and we have prepared the ledger. Now, how to balance, how to find out the balances of this ledger and what to write. All right. After posting of the ledger, we have learned how to summarize it. Summarize means how to prepare the trial balance from the ledger. Okay, all the balances we are taking from the ledger and we are posting in the trial balance. All right, student, that we have done. So today I'll take a few entries for the sake of revision. Okay, I'll be just revising. Till now we have done long questions, so many journal entries were there, then the posting, finding out the balances and all. I will take 2-3 entries only. Okay, I mean revision, just the basic things. Okay, so 2-3 entries I'll be taking, and I'll be teaching you how to post. I mean, initially, if you you have missed all the classes of your ledger, okay, so you can learn in this class only. Fine, within no time you can learn. So let me tell you. Suppose our first entry, Ram has started business with cash. So I may write like this: cash account debit to capital account. All right, students. My second entry is, it's 50,000. They have started business with cash, 50,000. Okay, purchase goods on cash basis. So this is let it be on credit basis. Okay, purchase account debit to Ram. कितने का है? That's of 2,000 rupees. All right, you have purchased. Now you will be making payment as you have purchased. So we are making payment to Mr. Ram. 1900 in full and final settlement. Okay, so making payment to Ram. Students, when we are using the word full and final settlement, that means we have to close the account of Mr. Ram. So we have to debit Mr. Ram's account with the same account which you have credited. So Ram's account debit by 2,000, okay, to cash. You are making payment 1900 and to discount received, that's 100 rupees. All right, so that way we have done the entries. We won't pass any more entries because the question will be very lengthy, right, students? So we have to learn how to post it in the ledger. Ledger posting, what you have to do, we have to take the first account. Okay, this is cash account, so I have to prepare cash account. Well, I'm not taking the proper format, right? Only debit and credit I'm taking. That this is debit side, this is credit side. We have a column date, particulars, JF, amount, then date, particulars, JF and amount, that way, right? Must be knowing because we have done the questions and I have given in the book also. So the first entry is cash account debit. Students, how to post it? Cash account debit, इसको कैसे पढ़ना है हमें? Cash account debit, right? तो हम कहाँ जाएंगे? कैश अकाउंट के डेबिट में. तो कैश अकाउंट का डेबिट ये है. यहाँ जो भी लिखना है वो टू से लिखना है, यहाँ जो भी लिखना है वो बाय से लिखना है. ठीक है, तो इट इज़. और अमाउंट हम कौन सा लेते हैं? जो अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके सामने जो है, राइट? तो कैश अकाउंट डेबिट. तो कैश अकाउंट डेबिट वी हैव कम हेयर. व्हाट टू राइट हेयर? वॉट एवर इज गिवन इन द ऑपोजिट साइड. तो कैश के ऑपोजिट में क्या है? कैपिटल. तो वी विल राइट टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट क्या होगा? कैश के सामने है 50,000, तो आई हैव रिटन दिस 50,000. ओके स्टूडेंट्स, नाउ माय नेक्स्ट अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट. सो दिस इज कैश अकाउंट, तो सेपरेटली आई हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट. जितने भी नाम होंगे वो अलग से आपको प्रिपेयर करने होंगे. ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड. सो वी रीच एट द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट. ओके, तो क्रेडिट में आ गए. कहाँ से शुरू करेंगे? बाय. तो ऑपोजिट में क्या है? कैश. तो आई विल राइट बाय कैश अकाउंट. और अमाउंट कौन सा लिखेंगे? जो कैपिटल के सामने है, 50,000.
All right, so I have done the posting. Next we have purchase account. So we don't have purchase, so let's create the purchase account. Purchase account क्या हो रहा है? Debit. So let's come to the debit side of the purchase. Opposite में है RAM, तो to RAM. What is in front of the purchase? That's 2000. All right, so that's all in the RAM purchase account. Now we have RAM account. So let's create Mr. Ram's account. This is debit side, this is credit side. So Ram क्या हो रहा है? Credit 2000 से. तो let's reach at the credit side of Mr. Ram by opposite में क्या है? That is purchase account. So we will write by purchase account 2000. Right, students? So Ram account is done. Fine. Now next again we have RAM account. Okay, so let's again reach at the Ram's account. What's the transaction? Ram's account debited by 2000. So I will reach at the debit side of Mr. Ram. Fine. So reach at the debit side of Mr. Ram. I prepare to this side. Okay, so that will be convenient for you to understand. Let's prepare the Ram's account again. And here RAM क्या हो रहा है? Credit. So by opposite में क्या है? Purchase account. RAM के सामने है 2000. I have written like this. This is your debit side, this is your credit side. Fine, students. So again the posting is Ram's account is debited. So I will come in the debit side of Mr. Ram. Okay, कितने से हो रहा है? 2000 से. सो व्हाट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऑफ कोर्स 2000 ही आएगा, यही वाला 2000 आएगा, बट वो 2 इंस्टॉलमेंट में आएगा. क्यों 2 इंस्टॉलमेंट में? क्योंकि इसके ऑपोजिट में 2 चीज़ें हैं. राइट, तो ये राम अकाउंट डेबिट हुआ है इनकी वजह से. राइट, तो ये वजह है. तो दीज रीजन्स आई एम राइटिंग हियर. टू राम अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश कितना? 1900. अगेन RAM account debit to discount received. तो RAM account debit to discount received, that's 100 rupees. Right, students? हम कैसे पढ़ते हैं कि RAM account debit हुआ है इनकी वजह से. तो RAM account debit to cash and discount received. तो separate entries we can do. RAM account debit to cash. Okay, RAM account debit to cash. What is 1900? Okay, इसमें है ना 1900 included है. Again the RAM account debit to discount received. How much? 100 rupees in this and 100 is this one. Okay, so total जो आपने डेबिट किया है, राम के अकाउंट को डेबिट किया है, that is 2000. All right, fine. So it is done. Now next is our cash account. So let's reach at the cash account. Cash account क्या हो रहा है? Credit. तो let us reach at the credit side of the cash account and that we start with the buy. So what is in the opposite? अब देखिए ऑपोजिट में इनके लिए भी ये वाला है और इनके लिए भी ये वाला है. नो कन्फ्यूजन. ओके, सो कैश क्रेडिट हो रहा है 1900 से. ये वाला 1900 लेना है. ऑपोजिट में है राम, तो दिस इज बाय राम बाय 1900. राइट स्टूडेंट्स? ओके, तो कैश अकाउंट हो गया. नाउ वी हैव डिस्काउंट रिसीव्ड. सो वी डोंट हैव दिस, सो लेट्स क्रिएट दिस डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. ओके, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड. डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है 100 रुपीज़ से. सो लेट्स रीच एट द क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट. फाइन, पहुंच गए. किससे शुरू करेंगे? बाय से. ऑपोजिट में क्या है? राम. सो दिस इज बाय राम्स अकाउंट. हाउ मच अमाउंट? 100 रुपीज़. Fine, students. So we have done the ledger posting. Okay, now we do the balance. Now the time comes of the balancing. I've told you जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट हैं उनके लिए जो भी आप बैलेंस करते हैं उनमें आप बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं. ठीक है, रियल अकाउंट्स मीन्स एनी पर्सनस नेम, फर्म्स नेम, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारे क्या हैं? आपके रियल अकाउंट हैं. ऑलराइट, एंड सॉरी पर्सनल अकाउंट है ना. कैपिटल अकाउंट है राम, श्याम, मोहन, ये सारे क्या है? पर्सनल अकाउंट है. नोट द रियल अकाउंट, बाय मिस्टेक आई हैव स्पोकन. रियल अकाउंट में आती हैं आपकी असेट्स. ओके, कोई भी असेट्स होती है वो रियल अकाउंट है. हम क्यों करते हैं? क्योंकि इन चीज़ों के बैलेंसेस, लाइक अगर किसी से पेमेंट नहीं आया है या आपकी असेट्स हैं फर्म में, तो दीज आर नॉट गोइंग टू फिनिश एट द एंड ऑफ द ईयर ना. वी आर कैरिंग दीज असेट्स टू द नेक्स्ट ईयर. तो जिन चीज़ों के बैलेंसेस आप कैरी करते हैं नेक्स्ट ईयर, उनके लिए बैलेंस लिखा जाता है. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स?
कि ये कैपिटल लगाई है इस साल तो ये हमेशा रहेगी, ठीक है। जिन चीज़ों के बैलेंस आप नेक्स्ट ईयर कैरी करते हैं उनके लिए आप बैलेंस यूज़ करते हैं, ओके। और जिन चीज़ों के बैलेंसेस आई मीन जो भी होता है एक्सपेंसेस या कुछ भी वो ख़त्म हो जाता है, इनकम है तो इस साल की है, इस साल में ख़त्म, राइट, नेक्स्ट ईयर अगली इनकम होगी। एक्सपेंसेस किए हैं तो दीज आर ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, तो हम यही कहते हैं इस साल के खर्चे हैं तो नेक्स्ट ईयर आप दोबारा से काम लेंगे तो दोबारा से एक्सपेंसेस होगा, राइट। योर एम्प्लॉयज़ विल बी वर्किंग तो यू विल बी पेइंग दैम सैलरी अगेन, तो वो नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर में काम आएगा। तो इस साल का सब खत्म। कैसे खत्म होता है? वी ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स विच वी शो इन द ट्रेडिंग अकाउंट विच वी विल बी लर्निंग लेटर ऑन। ट्रेडिंग में आप दिखाते हैं परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, ओके, कार्टेज, एंड दिस इज फ्रेट, ऑक्ट्राई, वेजेस एंड सैलरी, ये सारी चीज़ें आपके ट्रेडिंग अकाउंट से बंद होती हैं और ज़्यादा नहीं होंगी, ओके। एंड बाकी जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी इनकम है, वो सारी आपकी P&L से बंद होती हैं, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। नाउ हाउ टू बैलेंस, इफ़ यू हैव सम स्टूडेंट्स दे हैव कन्फ्यूजन एंड मोस्ट ऑफ यू आई थिंक डिडंट स्टार्ट इट डूइंग, राइट। करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन आएंगी, कन्फ्यूजन्स आपकी दूर की जाएंगी, डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, बट आप करें पहले, ओके। तो कैसे करना है बैलेंस? हम दोनों तरफ का रफ में टोटल करते हैं। देख रहे हैं यहाँ नील है और यहाँ पे इट्स 50,000। तो व्हाट टू डू, दोनों का टोटल आप लिख देते हैं, जो मैक्सिमम होगा वो दोनों तरफ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, नील है, तो यहाँ क्या आ गया? बैलेंस है। यहाँ पे कितना बैलेंस लिखें कि ये बराबर हो जाए? बैलेंस कितना हुआ? 50,000, ठीक है। तो वन थिंग स्टूडेंट्स कि आप यहाँ कुछ भी लिखते हैं वो 2 से शुरू होता है, यहाँ कुछ भी लिखते हैं वो बाय से शुरू होता है। अब चाहे वो इधर का बैलेंस हो या उधर का हो, इट्स कन्फर्म आपको क्या लिखना है? बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है। CD का मतलब होता है कैरिड डाउन। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स कि ये कैरिड डाउन ही लिखना है, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो, राइट। कहाँ? इस टोटल के अंदर जो बैलेंस आएगा, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, उसको आपको कैरिड डाउन ही लिखना है, राइट। लेट अस सी इन द नेक्स्ट ऑल्सो। हेयर वी हैव द डेबिट साइड, ओके। राम का परचेज में आपका ये डेबिट है, तो मैक्सिमम टोटल क्या हो जाता है आपका? 2000। आई जस्ट राइट एट बोथ द साइड्स। यहाँ कुछ नहीं है, नील है, तो आई विल राइट 2000, ये मेरा बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ कुछ भी लिखना है वो बाय से लिखेंगे। एंड आई टोल्ड यू, चाहे आपका बैलेंस इस तरफ आया हो या इस तरफ आया हो, ठीक है, आपको लिखना क्या है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चाहे बैलेंस डेबिट हो या क्रेडिट, कहीं भी हो, आपको कैरिड डाउन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट का भी करते हैं। तो हेयर यू फाइंड नो बैलेंसेस देयर, इट इज़ जस्ट इक्वल, ओके। डिस्काउंट में आपका बैलेंस इधर आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 100 rupees, I think it's clear. And one more account is there, the cash account. Here you had 50,000, its total, and this is also 50,000. So how much is lacking? It is 2,000 लेस करते हैं तो 48,100, राइट स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ जाएगा आपका? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। चाहे बैलेंस इधर है या इधर है, कैरिड डाउन लिखना है। इट्स टोटल इज 8, 9, 10, 5, ऑलराइट। तो वी हैव कैलकुलेटेड दीज बैलेंसेस, ओके। सो आई हैव रिटन कैश का भी आप बैलेंस लिखते हैं, कैपिटल का भी आप बैलेंस लिखते हैं, परचेज का आप बैलेंस नहीं लिखते। ये तो हमने सीखा है इसलिए मैंने ये बैलेंस लिख दिया है, ठीक है। परचेज हमारा कहाँ का आइटम है? आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स व्हाई आई हैव रिटन इट? बैलेंस आपको सिखाने के लिए लिखा है कि बैलेंस इस तरह निकलता है, ठीक है। अब परचेज हमारा कौन सा है? परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, इसको हम रियल अकाउंट भी मानते हैं कई बार। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हमें देखना होता है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो हम लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। राम हमारा पर्सनल है, बैलेंस आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है, इनकम को आप, और ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो हम यहाँ बैलेंस की बदले क्या लिखते हैं? ट्रांसफर टू P&L account, right students? Okay, in the previous class I have given the long detail and list everything I have given. This is just for the repetition. If you have still some doubt regarding all these things, so you can watch your previous video, fine, the more clarity will be there. Right students, so here we have done the balances. Now we prepare the trial balance out of these.
trial balance. I'm sorry. This is particulars, debit amount, and it is credit. Trial balance, we have a separate chapter of the trial balance. There we will be learning something more about the trial balance, right? But the most important thing is this only. We have three methods of the trial balance which we will be learning in the trial balance chapter, and this one is the balance method. एक होता है आपका total method, एक होता है combined method. Okay, तो हम कौन सा method कर रहे हैं? Balance method. Fine. So how to do? We just go at the first account. ये हमारा first account था, capital account. So I write number 1 capital account as we are doing the balance method. तो हमें balance देखना है. Another important thing students, अभी balance है मेरा, यहाँ पे है carried down, तो मैं कहाँ लिखूँ? The question arises कि ये डेबिट की तरफ है बैलेंस कैरिड डाउन, तो क्या मैं डेबिट में लिखूं या कुछ और? तो इसके लिए एक रूल फॉलो करना है. व्हाट टू सी, ये जो हमारे बैलेंस कैरिड डाउन आते हैं ये क्रॉस वाला सिस्टम होता है. आपको क्रॉस नहीं करना, सिखाने के लिए है कि इधर कैरिड डाउन है तो ब्रॉड डाउन इधर आता है. ठीक है. आई डेंट प्रिपेयर द डेट कॉलम. मान लीजिए ये 31 मार्च का था, तो नेक्स्ट डे कौन सा हो जाता है आपका? फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर ऑफ द बिजनेस, राइट? तो दैट विल बी 1 अप्रैल. तो 1 अप्रैल को आपका बैलेंस आ जाता है, और ये लाइन लगाने के बाद, टोटल करने के बाद जो बैलेंस आता है, इधर कुछ भी लिखेंगे वो बाय से लिखना है, पता है आपको? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट स्टूडेंट्स? अंदर कुछ भी होगा वो कैरी डाउन होगा, और इसके टोटल के बाहर जो लिखेंगे आप बैलेंस लेके आते हैं नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ईयर, तो वो आपका हमेशा ब्रॉट डाउन होगा, चाहे इस तरफ लिख रहे हैं चाहे इस तरफ लिख रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया आपका 50,000. परचेज अकाउंट का इधर कैरिड डाउन है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट्स 2,000. राम का है, देयर इज नो बैलेंस. ओके. डिस्काउंट रिसीव्ड, इट्स हेयर कैरिड डाउन, तो यहाँ आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 100 रुपीज़ है. एंड कैश का कैरिड डाउन है, तो बाय ब्रॉट डाउन 48,100 इधर है. स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर. अब मैंने यहाँ देखो, यहाँ ट्रांसफ़र टू P&L लिख दिया और यहाँ ब्रॉट डाउन लिख दिया, तो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग. जब मैंने ट्रांसफ़र कर ही दिया है P&L में, तो यहाँ पे ब्रॉट डाउन नहीं लिखते हैं. ठीक है. जब मैंने बैलेंस कैरी डाउन नहीं किया तो ब्रॉट डाउन भी नहीं करेंगे. ठीक है. क्या होता है हमारा? ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वो मोस्ट प्रोबेबली आपका उसी ईयर कंज्यूम हो जाता है. ठीक है. लेकिन क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस कभी भी बना के देख सकते हैं, बीच में मैंने कुछ एंट्रीज ली हैं, तो हमें ये चेक करना है कि मेरी अर्थमेटिकली कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो उसके लिए हमें देखना है. ठीक है. तो कैपिटल अकाउंट का आपका किधर का है? अब कहाँ लिखना है? जहाँ पे ब्रॉट डाउन हो या जहाँ पे ज़्यादा हो. ज़्यादा भी यही है क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं, नील था, तो ये वाली ज़्यादा वाली तरफ है. ठीक है. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 इज इन द क्रेडिट साइड, so I will write in the credit side 50,000, right? Then the second one we have purchase account. Purchase account का है हमारा डेबिट की तरफ. Okay, I can write purchase account, it's 2,000. Okay. Then RAM account nil, nothing, क्योंकि कोई बैलेंस ही नहीं है, तो जो बैलेंस मेथड होता है उसमें हमें नहीं दिखाना है यहाँ पे. Then we have next discount received, it's having credit. Okay, 100 rupees comes in the credit side. Fine. And next we have cash account. Cash account का डेबिट में है 48,100. right students? So these balances I have written. Fine. Now let's do the total of this trial balance. Here comes 50,100 and here comes again 50,100, right? So my trial balance is agreed, it's debit and credit both are equal. That means no arithmetical mistake is existing. No arithmetical mistake is there. This is the proof. When your trial balance tally, this is the proof that no arithmetical mistake is there. But it doesn't mean that no mistakes are there. Students, some conceptual mistakes can be there, principal mistakes can be there. Maybe the entry which you have passed, ये purchase to राम था, मान लो आपने गलती से राम टू परचेज कर दिया, तो गलती हो गई आपकी, राम अकाउंट भी गलत हो गया, परचेज भी गलत हो गया. ठीक है. लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि डेबिट कहीं भी अकाउंट गलत हो गए, लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट का जो ओवरऑल टोटल आने वाला है वो आपका इक्वल हो जाएगा. Understood that? So that is why we say कि trial balance, when your trial balance agree, that means
दिस इज द प्रूफ दैट नो अर्थमेटिकल मिस्टेक इज एग्जिस्टिंग. मान लीजिए मैंने इसको टैली करने में बैलेंस टोटल में कोई मिस्टेक कर दी है, तो वो अगर मेरी कोई गलती हो जाती है, कहीं भी कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए मैंने डेबिट में 2000 लिख दिया, क्रेडिट में 200 लिख दिया, राइट, कोई भी गलती हो जाती है, तो दैट कैन बी कैश फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, राइट. तो अपना ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा और हमें पता लग जाएगा. Alright students, so that was the revision class for your posting of the ledger. From the journal entry we have done the posting, how to find out its balances, how to write the brought down, which side we write, and how to carry the balances from the ledger to the trial balance and the total is equal. Fine students, in the next class I'll be teaching you something else. Thank you.